گیتا میں موجود ہے، انذار ہے تیری جناب۔ مہما اس میں گیتا میں موجود ہے۔ ہاں، ہاں اچھا، مزے کی مہما بات اب، تعریف کو کہتے ہیں۔ اور ان الہامات پہ مرزا صاحب کہتے ہیں میں ایسے یقین رکھتا ہوں جیسے قرآن پہ بالکل برابر کا نا۔ تو وہ کہتے ہیں انذار کیا ہے؟ تمہارا نام ہے علی باس یعنی اب امت کو یہ الہام رہ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے امت کی اصلاح ہوگی، تمہارا نام ہے علی باس۔ اچھا مزیدار پتہ ہے کیا مجھے کیا لگتا ہے؟ مزیدار یہ لگتا ہے کہ ایک الہام آیا ہے 1905 20 فروری کو، اور کہتے ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کی طبیعت ناساز تھی، حالت کشفی میں ایک شیشی دکھائی گئی جس پہ لکھا ہوا تھا خاک سار پیپر منٹ پیپرمنٹ، ہاں جی، خاص طور پیپرمنٹ۔ یار یہ میں حیران ہوں کہ یہ اور یہ ان پہ قرآن کی طرح الہام کو یقین بھی رکھنے کی اس کا جو وہ ہے درجہ ہے وہ قرآن کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ مجھے پنجابی والا سمجھ نہیں آیا، کہتے ہیں 20 دسمبر کو ہوا ہے، پنجابی میں الہام ہوا ہے، پنجابی کا فقرہ ہے واللہ واللہ سدھا ہویا سدھا ہویا اللہ، کیا ہے یہ اولا سدھا ہو یا اولا سدھا ہویا اولا، سید واللہ سدھا واللہ ہوئے سدھا ہویا اللہ، یہ اولا۔ جناب کو الہام ہو رہا ہے جس سے امت کی اصلاح ہو رہی ہے۔ اصلاح کا بیڑا چکیا نا۔ ایک اور اچھا بھی ہے، دو اصلاح کے لیے ایک اور آیا ہے، غلام احمد کی جے، یہ اصلاح ہو رہی ہے۔ نہیں، دو ایک استرے، پٹی پٹی گئی ہے، ہاں جی، دو پٹی استرے پٹی کی گئی۔ شیشی پٹی پٹی گئی، دو استرے عطر کی شیشی، سیفٹیاں ہیں یا لاہور میں استرے ایک ہیں؟ بے شرم رہتا، ایک یہ بھی ہے انظار، لاہور میں ایک بے شرم رہتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی سنا ہے میں نے لاہور میں ایک بے شرم ہے۔ نادر شاہ کی طرف گیا کہاں یا ہے؟ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیٹ پھٹ گیا، ماتم کدا، وعلیکم السلام۔ اب پوچھے کوئی کہ یار کیا مرزا صاحب، اب مرزا صاحب کسی بندے کو آ کے بولیں کہ یار میں نبی بنایا گیا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، میں وہ تو ہمیں پتہ ہے قل هو اللہ احد، ہمیں اس کو ماننے کے لیے آپ کو نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہمیں قرآن سے پتہ ہے۔ پھر کوئی بندہ آ کے بولے جناب کہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، یار یہ بھی قرآن میں آتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں نبی ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی کیوں مانے؟ پیٹ پھٹ گیا، اس کے لیے نبی مانے۔ جی سدھو بھائی السلام علیکم، آپ کا سوال جناب، آپ کا ٹائم، شکریہ۔ جی وعلیکم السلام کلاؤڈ بھائی، میرا سوال بیسیکلی آپ سے ہی ہے، عامر بھائی سے، اور بھی مطلب جب موسٹ پروبیبلی میں آپ لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ مجھے آپ کائنڈلی یہ بتائیں گے کہ الہام بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کو کس طرح اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ الہام جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جائے تو کیسے کیا جائے گا؟ بیکاز جو اگر کیا کوئی بندہ نیند میں ہے یا سو رہا ہے، کبھی کسی شخص کو کوئی ظاہری مجھے پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتے تھے، پھر وہ قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا، بٹ ان کے بعد جو بھی جیسے میں نے زیادہ نہیں سنا، اس لیے میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ میرے طرف سے کوئی غلط بات منہ سے نہ نکلے۔ آپ کائنڈلی مجھے، میرا مین کنسرن یہ ہے کہ کیا کسی انسان کو ظاہری حالت میں الہام ہو سکتا ہے؟ جیسے میں ابھی بیٹھا ہوں تو میں ایک جرنل بات کر رہا ہوں، مجھے کائنڈلی بتائیں اس پہ۔ جی علامہ صاحب۔ یہاں بات کریں، میں ایک منٹ یہ ویٹ کر لوں۔ الہام جو ہوتا ہے وہ تو القاء کو کہتے ہیں نا، جو دل میں خیال ڈالا جاتا ہے، تو وہ جاگتے ہوئے تو ہو سکتا ہے، سوئے ہوئے الہام کیا ہونا ہے؟ سوئے ہوئے تو بندہ سو رہا ہوتا ہے، اس کا جو لاشعور ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، شعور تو سو رہا ہوتا ہے، تو الہام کیا ہوگا اس کا؟ میں ان کو بدھو بنایا ہوا میں کہیں۔ اچھا بات یہ سدھو بھائی، میں گاڑی چلا رہا ہوں مثال کے طور پہ، اور گاڑی چلاتے ہوئے اچانک سے میرے دل میں آیا کہ یار لیفٹ ٹرن کر لو بس، اور میں نے جناب لیفٹ ٹرن کر لیا، میرا دماغ سنتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، اور لیفٹ ٹرن کرتے ہی میری نظر پڑ گئی کہ یار اگر میں سیدھا جاتا تو سامنے جو ہے وہ سریے والا ٹرک تھا، میں سیدھا گھس جاتا، میری موت ہو جاتی۔ اب میں گاڑی پارک کر کے سوچ رہا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ نے میری مدد کری، اللہ نے دل میں بات ڈال دی، گاڑی لیفٹ پہ موڑ لو، اور میں نے گاڑی موڑ دی، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بچا لیا۔ تو الہام کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے کبھی بھی کلام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا سکتا ہے، آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے، یہ تو اس پہ ہم اس کے انکاری نہیں ہے، بالکل اس کے انکاری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کس بات کے انکاری ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ فرشتہ آئے گا اور قرآن جیسا ایک کلام لے کر آئے گا، اس کے ہم انکاری ہیں۔ الہام تو آپ کو بھی ہو سکتا ہے سدھو بھائی، اس پہ کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے، ولی اللہ کو الہام ہو سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کو الہام ہو سکتا ہے، علماء کو الہام ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے جو یہ ہیں
दुर्र मंसूर जिन्होंने लिखी है, मैं नाम भूल गया अभी, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के बारे में खुद मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि वो तो हालत कशफ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल के पता कर लिया करते थे कौन सी हदीस सहीफ है, कौन सी हदीस सही है। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसका इनकारी हम नहीं है, इसके इनकारी कोई भी नहीं मेरा ख्याल है आज के दौर में। जी सिद्धू भाई। जी जी ठीक है क्लाउड भाई। ये सिंपल टर्मिनोलॉजी है। वो बस हम इनकारी किस चीज़ के हैं कि भाई कोई शख्स ये बोले कि मेरे ऊपर देखो अब बात ये है कि सिद्धू भाई आप ये बोलो, मिसाल के तौर पे मेरे सामने मिर्ज़ा साहब आते हैं और बोलते हैं मुझे इल्हाम हुआ है और इल्हाम में मुझे कहा गया है कि मैं नबी हूँ। यहाँ पर अब हम ये बोलेंगे कि यार आपको इल्हाम हुआ है, गुड फॉर यू, मगर मेरा जो कुरान है ना, जो कुरान है वो मुझे कहता है कि वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अब आपको किसी भी किस्म के किसी भी शख्स के किसी भी इल्हाम पे ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? ईमान सिर्फ आपने लाना है वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ और उससे पहले हुआ, इसके बाद किसी पे आप ईमान नहीं ला सकते। तो अगर एक शख्स आके आपके सामने ये बोले जनाब मुझे इल्हाम हुआ है और मैं नबी हूँ और मुझे मानो, तो आप बोलोगे यार गुड फॉर यू, इस तरह बहुत फिर रहे हैं बाहर, चरसी वरसी भंगी, सीधी सी बात है। लेकिन हमें आपको इसके लिए नबी मानने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कुरान हमें बाउंड करता है कि किसी भी किस्म का इल्हाम को हम नहीं मानेंगे। हाँ, कोई ऐसी बात जो कुरान और हदीस से मैच करती हो। अब एक बंदा ये बोलता है यार मुझे इल्हाम हुआ है और अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, तो हम बोलेंगे यार माशाल्लाह मुबारक इल्हाम है, कुरान में बिल्कुल इसका जिक्र है, बहुत मुबारक इल्हाम है। जहाँ वो शख्स ये बोल दे यार अब मुझे इसकी वजह से नबी मान लो, हम बोलेंगे चल तेरी ऐसी की तैसी दफ़ा यहाँ से, मेरा कुरान बिल्कुल मुझे बाउंड कर रहा है कि किसी भी किस्म की किसी भी इल्हाम पे ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी सी बात है। अच्छा लास्ट क्वेश्चन क्लाउड भाई। जी मेरी जान। मैं अगेन बार बार ये कह रहा हूँ कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से नहीं नहीं पूछ नहीं, अब मैं भी आलिम नहीं हूँ, यहाँ तो मौलाना ये अल्लामा साहब बैठे हैं, ये बताएंगे। लेकिन जी ये आप जी जी अच्छा, जो इल्हाम का जो वर्ड है इट्स स्पेसिफिकली नॉट कनेक्टेड विद अल्लाह ताला। लाइक कोई भी बंदा जब ये बात करेगा कि मुझे ये इल्हाम हुआ है, तो इट्स ओनली एंड स्पेसिफिकली ये जो अल्लाह ताला की ज़ात से ही कनेक्टेड है ना। हम लोग उर्फ में ये कहते हैं कि इल्हाम हुआ, अल्लाह ने दिल में अलका किया, अल्लाह ने दिल में बात डाली, उर्फ में हम यही कहते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे अभी तक ऐसी कोई बात नहीं मिली कि यार फलां बाबा जी ने दिल में आके इल्हाम किया। मैं इस तरह की बातें मैंने सुनी भी नहीं। लेकिन जो उर्फ़ में मैंने बुज़ुर्गों से सुना है कि अल्लाह ने इल्हाम किया, अल्लाह ने इस्लाह फ़रमा दी, अल्लाह ने हिदायत दे दी, अल्लाह ने दिल में ये बात डाल दी, अल्लाह ने दिल खोल दिया, अल्लाह ने कान में ये बात डाल दी। इस तरह की बातें अल्लाह ही की तरफ मंसूब की गई हैं, जो मैंने सुनी है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, मेरी बात मुझे समझ आ गई। आप करें बाप भाई बात, मैं सुन रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये अबू बकर भाई ने अच्छी बात बताई। एक बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया अबू भाई। कुरान करीम की आयत है इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम, कि शैतान भी अपने दोस्तों की तरफ वही करता है। कुरान की आयत है। तो अब एक शख्स आपके पास आके बोलता है कि यार मैं जो हूँ अल्लाह का नबी हो गया हूँ, मिसाल के तौर पे, तो 100% अगर वो बात कुरान और हदीस से टकरा रही है, तो फिर वो इन्न शयातीन लयूहूना इला औलियाइहिम के ज़मरे में भी आती है। वो इसलिए कि भाई ये बात ना कुरान में ना हदीस में है, उल्टा शरीयत से टकरा रही है। और शैतान ये कहता है कि कुरान ये कहता है कि शैतान भी वही करता है अपने दोस्तों की तरफ। तो भाई आप उनके दोस्त हो और ये आपकी तरफ वही आई है जो कुरान और हदीस से टकराती है। बिल्कुल अबू बकर भाई, शुक्रिया आपका, बड़ी अच्छी बात की आपने। आप कहेंगे तो आपको आयत बता दूंगा मैं इंशाल्लाह। लेकिन एक बात और भी है कि इसके लिए आपकी ज़हनी कैफियत भी सही होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। मेडिकली भी आपको फिट होना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आप यूज़ करते हैं तो आपको बड़े अजीबो-गरीब किस्म के ख़्यालात और ख्वाब और ऐसे की चीज़ें आती हैं। बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल आपको ऐसे, मेडिकली मेडिकल भी से। फिट होना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मेडिकल सिचुएशन मैटर्स, बिल्कुल। हाँ, मतलब सही इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता, या तो मेडिकल सिचुएशन है यानी मतलब मेंटली तौर पे रिटार्डेड है, या जनाब फिर कुछ और मसला, लेकिन सही इंसान ऐसी बातें नहीं करते। अब कुछ जो है एंटी डिप्रेशन मेडिसिन अगर आप लेते हैं, मैंने भी किसी टाइम पे ली थी, तो आपको बड़े अजीबो-गरीब मतलब ख्वाब आते हैं रात को, और दिन को भी आते हैं, रात को भी। जब आपकी आंखें बंद होंगी आप कहेंगे पता नहीं मैंने कितनी ही दफ़ा देखा कि मेरा प्लेन क्रैश हर रोज मुझे एक ही ख्वाब आता था प्लेन क्रैश का। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। वो बेसिकली फिर मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कहता है ये इस दवाई के साइड इफेक्ट में है कि आपको स्ट्रेंज किस्म के ड्रीम्स आएंगे, अजीबो गरीब किस्म के।
تو वैसे मेडिकली भी ठीक बेहतर है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इस खाकसार को 2 दफ़ा प्लेन क्रैश का सआदत नसीब हुई है यूके में। वो तो होता है। सेस्ना जहाज़ था, हवा में उसका इंजन फेल हो गया, स्टूडेंट मेरे साथ था। मैं फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर भी हूँ ना, वीकेंड पे थे वो जहाज़ हमारा। लेकिन हमारी ट्रेनिंग का ऐसा होता है कि हम जो है यूके में माशाल्लाह खेत खलियान बहुत हैं। जैसे ही जहाज़ का रनवे छोड़ो, इतने खेत हैं कि कहीं पे भी जहाज़ उतार दो। तो छोटे जहाज़ होते हैं, आराम से खेतों में उतर जाते हैं। तो 2 दफ़ा हो चुका है ये, मगर चूँकि ट्रेनिंग हमारी रही है तो इसलिए डर खौफ नहीं होता। तो उसको चखा हुआ है हमने। अलबत्ता बड़े जहाज़ तो तबाही होते हैं, सीधी-सी बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो मेडिकल कंडीशन ठीक होना भी, अब यहाँ पे एक वो मिर्जाई फिरता है MSR चीमा, वो नबूवत के दावे करता फिरता है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मुझे 4 इनाम मिले। अब उस बंदे की ना सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है। लगता ये है कि उसकी मेडिकल कंडीशन जो सी है ना वो ठीक नहीं। एक और यहाँ पे जहीर नाम का बंदा फिर रहा होता है, जाहिर जहीर। अब वो 2 साल हो गए मैं उसको देख रहा हूँ, वो लिबास तलाश कर रहा है। लिबास दिखाओ, एक ही क्वेश्चन रिपीटेडली, लिबास दिखाओ, अच्छा जी अल्लाह का हाथ दिखाओ, फलां दिखाओ, ये दिखाओ, वो आजकल उसने पकड़ा हुआ है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है दिखाओ। तो ऐसे मेडिकली अनफिट बंदे भी बहुत ये मौजूद ज़हीर हैं। वो तो नहीं जो मुरब्बी बनते-बनते रह गया था, फिर उसको इतना दुःख हुआ, पागल हो गया। ऐसे ही कुछ सुना है मैंने वही उसके बारे वही में। अभी आ जाएगा, यहीं घूमता फिरता, वो वीडियो भी बनाता रहता है हाँ, कि देखा है पूरा मैंने। क्लिप काट के ना। अब उसकी जहनी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई, इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, टोटली वो जो है ना मेंटली अपसेट बंदा है, रिटॉर्टेड जिसे कहते हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो मेंटली फिट नहीं है। MSR बिल्कुल भी मेंटली फिट नहीं है। इनमें एक खातून है नोशी नोशी नाम की, वो भी मेंटली फिट नहीं है। अरे यार, उसको मैंने कल बोलते हुए सुना। मैंने हम्म, कल उसको बोलते हुए सुना। अल्लाह की कसम एग्जैक्टली सेम थॉट थी मेरी भी। मैंने कहा यार ये बंदी बोल कैसे रही है, इज शी फिट और नॉट? 2 साल से वो मुझे गालियां दे रही है, 2 साल हो गए, अब एक ही गाली दे रही है, और प्राइवेट में मैसेज करके ना एक ही गाली दी जा रही ओए होए होए। है। और ऐसे भी हो जाता है कि कुछ लोग जो मेडिकली अनफिट हैं वो ऐसे ऐसे शेर बोलते हैं, ऐसे ऐसे वो कलाम पढ़ देते हैं कि आप हैरान परेशान हो जाएंगे। तो मेडिकली फिट होना भी बड़ा ज़रूरी है इस काम के लिए। हम वो उस्ताद मोहतरम ताहिर अमजद साहब आते हैं, वो 2 साल से एक ही गाली दे रहे हैं, बैनल इत्तेहाद काफरीन के खारिज ज़दा कुत्ते, वो एक ही बात किए जा रहे हैं। असल मैं में है कि टिकटॉक पे आने से पहले क्योंकि इससे पहले इनकी तमाम बातें होती थी व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे ना, तो वो एक ऐसा चैनल था जहाँ पे किसी को पता नहीं था और पब्लिकली ये जलील नहीं हो रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। अभी इन्होंने सोचा जनाब टिकटॉक पे आ गए हैं और अब तो हम ना सामने आके ना बात करेंगे। इनको पता नहीं था कि इन्होंने शुरू में आके कुरान और हदीस पे हम जब बातचीत करना शुरू करी ना, तो अब माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग आए सामने कि वो कुरान और हदीस से इनको जलील कर गए। अब जब कुरान और हदीस ख़त्म हो गया तो फिर इनकी किताबें उठा के इनको जलील कर गए। और अब यकीन करें कि जितने जलील ये टिकटॉक पे आके हुए ना, इतने कहीं नहीं हुए। अब इनके पास सिवाय गालियाँ देने के कुछ नहीं बचा है। बस इतनी सी बात है, या गालियाँ देंगे या म्यूट करके उतार देंगे, क्योंकि दलाइल के मैदान में बिल्कुल ये पिछड़ चुके हैं, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। क्लाउड भाई का परसों मुझे ना नादिर ने उठाया अपनी ब्रॉड पे ना, पैनल पे मैं बैठा होता, मैंने उसे जाके कहा मैं वादा करता हूँ मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, एक इल्मी सवाल करने आया, साथ ही ब्लॉक। पैनल पे बैठे बैठे ऊपर से मैं दूसरी आईडी से गया, कहता है इसको किसी भी ब्रॉड पे हाँ जो है ना इस बंदे को नहीं लेना। तो ये इन्होंने ना बड़ी ड्रामेबाजी लगाई हुई थी। मैं इनकी हर ब्रॉड पे जाके ना सिर्फ एक ही सवाल करता हूँ। अब मैं कहता हूँ यार मुझे ना कुरान से, और ये मैंने माशाल्लाह आपसे ही सीखा है, आपकी मैं वीडियो सुनता रहता हूँ बहुत सारे भाइयों से, आमिर नज़ीर भाई से भी सुनता हूँ, और भी जितने भी भाई हैं। मैं उन्हें कहता हूँ यार मुझे कुरान से एक ऐसी आयत प्लीज़ दिखा दो जिसमें तुम लोग ये उस कज़ाब और दज्जाल के बारे में बात करते हो ना, तो मुझे कुरान से कोई एक आयत दिखाओ उसमें ये लिखा हो कि शरई नबूवत बंद हो गई है और गैर शरई जो है वो जारी है। आगे से गालियां देनी शुरू कर देते। अब ये आप मुझे बताइए कोई गलत सवाल है? बिल्कुल सही सवाल है, बड़ा ऑथेंटिक सवाल है ये, बड़ा ऑथेंटिक सवाल है जनाब ये। ऐसे ही है, मैंने कहा ना कि आप जैसे शेर माशाल्लाह ऐसे हैं कि जब वो कुरान और हदीस पे पहले ताने देते थे ना, जब मैं आया था आज से 6 महीने साल पहले,
اور ابھی کی حالت جناب یہ ہے کہ ان کی چوکیاں خالی ہو گئی ہیں، ان کا سودا کوئی بھی نہیں لے رہا، بیٹھ کے آواز لگاتے رہتے ہیں کوئی بھائی جو ہمارے پاس آگے بات کر لے، کیونکہ قرآن و حدیث کے میدان میں کچھ بھی نہیں بچا ان کے پاس. قسم سے کلاؤڈ بھائی بالکل ایسے ہی ہے. اب جیسے دیکھیں یہ ان کو جن لوگوں کا پتہ ہے نا کہ یہ آ کے ہمارے ساتھ پورا مقابلہ کریں گے ان کو پینل پہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک ہے مائک میوٹ کریں گے. اس دن میں آپ کو بھی سن رہا تھا آپ کے ساتھ کیا کر رہے تھے, مائک میوٹ, بات نہیں کرنے دے رہا, یہ لگاؤ وہ لگاؤ, 6 بندے بول رہے ہیں اور کوئی ان کے سامنے آ جائے نا کوئی ہلکا بندہ, کوئی ہمارا نیا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپس میں ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہو گے یا کسی کا سوال لو گے؟ جزاک اللہ. اچھا یہ ابھی ملک صاحب نے جو بات کی ہے نا کہ ذہنی حالت بھی